The journey so far has been interesting and informative for you all. So today's session is by Ms. Janvi Mulani ji. I would like to introduce her. Janvi Priya ji is a science graduate from Rajasthan from past 18 years. She is associated to a very profound spiritual organization, ISKCON. She is a dynamic youth mentor and leads many groups of youth, motivating them to achieve real success and happiness in life. She preaches teachings of Bhagavad Gita to a large mass of people, even in Pakistan. We are very grateful to have her here to enlighten us with her Vedic wisdom. Thank you so much, ma'am. Over to you. I would also like to welcome Mr. Yogesh Madanji for this session. Thank you all. Thank you, ma'am. Hare Krishna, everyone. Well, loud and clear? Can you Yes, hear ma'am. me? Yes? Karan, you can hear me? Yes. Yeah? Green shirt, can you hear me? Yes. Thank you. So, Mama, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So thank you for inviting me. 6 दिन से आप शायद अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में सुन रहे हैं. I don't know how much you are willing to attend. कितने लोग फोर्सफुली आए हैं आज? सच्ची? मैम आप थोड़ा बाहर जाइए ना. मुझे याद है मैं और प्रतीक बात कर रहे थे अभी कि जब मैं मेरे कॉलेज में थी ना तो हम कोशिश करते थे 10 मिनट पहले पहुंचने की. पता है क्यों? क्योंकि हमें फ्रंट सीट्स पे बैठना होता था. पर मैं आज देख रही थी कि बच्चे लास्ट सीट पे बैठना चाहते हैं. The time is changed. The definitions are changed. You know, the formulas are changed of life. This is what we are talking about. We are going to talk about today. How the life is changed and how we need to change the formulas we are following since time immemorial, and how to find the real happiness in those formulas. मेरी बेटी मुझे बोलती है मम्मा हमारी जनरेशन बहुत सारे स्टीरियोटाइप तोड़ने वाली है. So yes, it is true and it's not bad even to break the stereotypes. पर कहीं हम उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में अपने एग्जिस्टेंस को तो हार्म नहीं कर रहे. ये हमें सीखना है और इसी का कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी. सो आई वेलकम एवरीवन हियर. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Are you all with me? Yes. Raise your hand please. Who is with me? Thank you. Thank you so much for being present here. Yes, Pradeep. Thank you everybody for being here. Today we thought of a different concept which is quite trending nowadays. That is a talk show. So I'm going to be your host, asking your questions from your side, and any of the questions that you have, you might ask at the end, so you can keep those questions prepared. So there's a story. A teacher asked the students in the class, what do they want to become? So a girl came and she wrote teacher. Another boy came and he wrote pilot. There was another young boy. He came and wrote on the board that he wants to be happy. So we see that happiness means various things for various other people. In village, happiness for a young boy is different, and in the city, happiness for us is different. So just to kickstart the conversation, I would like to ask, what is happiness according to you? So yes, as Pratik said, happiness is different for everyone. I want to take some views present here and the students present here. What is happiness for you? Yes, anybody? What is happiness for you? Yes? Very nice. Please clap for him. Achieving the goals is happiness. Anybody else? Yes? Eating good
good food is happiness. Yes, very nice. Clap for her. Yes, this side. Spending a time with family. Very nice. Spending some time with family is happiness. You see, अगर हम हैप्पीनेस का डेफिनेशन पूछेंगे तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने डेफिनेशन आ जाएंगे और फिर भी कुछ डेफिनेशंस बच जाएंगे. बिकॉज किसी के लिए खाना हैप्पीनेस है, किसी के लिए सोना हैप्पीनेस है. एक विलेज बॉय को ऊपर देख के सपना है कि मैं कब इस उड़ते हुए प्लेन में बैठूंगा, और एक बच्चा जो यूएसए से आ रहा है उसको लग रहा है मैं कब प्लेन से उतरूंगा, 12 घंटे से बैठा हूँ. इट्स वेरी बोरिंग. So happiness is different for everybody. And moreover, happiness का duration भी होता है ना. कुछ seconds का happiness चाहिए, एक chocolate खा लीजिए, कुरकुरे खा लीजिए, टेढ़ा है पर मेरा है. अगर आपको कुछ minutes का happiness चाहिए, तो अच्छी सी होटल में जाके अपनी पसंद का खाना खा लीजिए, रसगुल्ला खा लीजिए, समोसा खा लीजिए. अगर आपको कुछ hours का happiness चाहिए तो वो जो गुड मूवी आजकल कार्तिकेय चल रही है, या फिर क्रिकेट देख लीजिए. अगर आपको एक दिन का हैप्पीनेस चाहिए, अच्छा सो जाइए, उठने के बाद आपको लगेगा मैं बहुत फ्रेश हूँ. कभी हर्षिता की छुट्टी होती है, मैं उसे सुबह उठाने जाती हूँ 9 बजे, बोलती हूँ मम्मा प्लीज लेट मी स्लीप, इट इज माय डे टुडे, लेट मी एंजॉय इट बाय स्लीपिंग. और मेरी जनरेशन के लोगों को ना ये स्लीपिंग वाला कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता कि स्लीपिंग करके कैसे आदमी एंजॉय करता है, पर बच्चों को अच्छा लगता है सोना. एंड इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर 1 month, बाय अ गुड कार. इफ यू वांट हैप्पीनेस फॉर 1 year, गेट मैरिड. आई डोंट वांट टू ऑफेंड द मैरिड पीपल हियर, बट ज्यादातर मैरिड नहीं है. एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, यार तू इतनी अच्छी कविताएं लिखता था, आजकल बंद कर दिया. बोले हाँ यार, जिसके लिए लिखता था उसकी शादी हो गई. बोले तो अच्छा है ना, अब विनय रस में लिख और अच्छी कविताएं लिखेगा. तो तू समझा नहीं, मुझसे ही हो गई है. सभी कविताएं लिखना बंद है. जिसका पाप का घड़ा बढ़ता है उसको नरक जाना पड़ता है, और जिसका खुशियों का घड़ा बढ़ जाता है उसकी, मैं नहीं बोलूंगी, शादीशुदा लोग बैठे हैं. So get married if you want to be happy for 1 year, and if you want to be happy eternally, which is the search of everybody. We are happiness hunters, is not? कोई भी चीज हम किस लिए करते हैं? Why you want to spend time with family? Because you want to be happy. Why you want to sleep? We want to be happy. So if you want to become happy eternally, then there's a different talk for that. And happiness is not actually external business, it is internal business. हमने कहानी पढ़ी थी हिंदी की किताब में 7वीं कक्षा में. मामा जी अपना चश्मा ढूंढ रहे थे, सबको घर में डांट रहे थे, तुमने उठाया मेरा चश्मा, तुमने गुम किया मेरा चश्मा, किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? तो पप्पू आता है मामा जी के पास, मामा जी ये जो आपके सर पे रखा है कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे आप? और मामा जी हाथ लगा के देखते, अरे हाँ पप्पू यही तो ढूंढ रहा था, मेरा चश्मा कहाँ था? मेरे सर पे था. And I was finding it everywhere. I was trying to find it everywhere. So this is what the happiness is. शायद हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं. हैप्पीनेस का एग्जिस्टेंस नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हम शायद उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं. So happiness is internal business. Happiness is something you have to find internally. Yes? So the next question that comes to my mind is that what is the problem with the happiness that we are experiencing now? As you told, achieving our goals, going to parties, watching a movie. All these sources of happiness is also giving us, good bliss. So my question is that what is the problem with the happiness that we are experiencing right now? Why do we need to go inside? देखो प्रतीक, एक होता है लुकिंग हैप्पी और दूसरा होता है बीइंग हैप्पी. एक हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे, दोनों काम कर रहे थे किसी फर्म में. बड़ी मुश्किल से उनको छुट्टी मिली 2 दिन की, और उन्हें इंस्टाग्राम पे चेक किया कौन सा प्लेस सबसे कूल है, कौन से प्लेस पे जो हमारे ब्लॉगर्स हैं उनको बड़ा मज़ा आया.
और उन्होंने एक चूज किया, एक पिक किया प्लेस और वहाँ दोनों चले गए। जब वो वहाँ पहुंचे, होटल में रूम देखा तो उनको लगा दिस इज नॉट गुड रूम, जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं। थोड़ा बार्गेनिंग किया उसके साथ में कि भैया फोटो में तो कुछ और है, थोड़ा ठीक वाला रूम दो। फिर सोचा कि चलो ठीक है बीच पे चले जाते हैं, बहुत बढ़िया बीच था वहाँ पे। बीच पे घूमने गए और उन्होंने सोचा ये तो वैसा है नहीं जैसा दिख रहा था। एंड फाइनली और सबसे अच्छा हैप्पीनेस होता है अच्छा खाना अगर मिल जाए। सो द फेमस रेस्टोरेंट वहाँ का जिसको सबसे ज्यादा स्टार्स मिले थे वहाँ चले गए खाना खाने के लिए। एंड दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फूड। एनीवेज 2 दिन की छुट्टी बिगाड़ के परेशान होके वो लोग घर आए और जो पत्नी थी उसने जो फोटो खींचे थे उसको थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा मिक्स मसाला करके उसने इंस्टा पे पोस्ट किया और उसमें बहुत सारे लाइक्स आ गए। अब ये ट्रिप कैसा हो गया? कैसा हो गया अब ये ट्रिप? गर्ल्स बता सकती हैं शायद। अब ये ट्रिप कैसा है? 1 मिलियन व्यूज हैं, लाइक्स हैं, शेयर्स भी हैं। अब ये ट्रिप कैसा है? अब ये ट्रिप अच्छा है यार, इतना भी बुरा नहीं था। देखो ना कितने अच्छे व्यूज आए इस पे। मेरा वीडियो ना जो बीच वाला होता है वायरल हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी। So this is the happiness, the worldly happiness we are talking about is, it is more about looking happy, not about being happy. आजकल दिखावे का दौर है साहब, हर चीज दिखावे से दिखती है। और क्या प्रॉब्लम है इस वर्ल्डली प्रेशर में? हमारे शास्त्र बताते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवत आद्यंतवंत कौन्तेय। इसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि शुरू भी होती है और खत्म भी हो जाती है। मतलब या तो वो प्लेजर, जो चीज हमें प्लेजर देती थी वो खत्म हो जाती है। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है लेकिन जैसे मैं मुंह में डालती हूँ प्लेजर खत्म। कितनी देर रुकता है रसगुल्ले का टेस्ट हमारी जबान पे? आपको पता है हम पिज्जा, नूडल्स ओवर ईट क्यों करते हैं? क्योंकि उसका टेस्ट हमारी जबान पे कुछ सेकंड्स तक रहता है। अगर 1 घंटा टेस्ट रह जाए ना पिज्जा का तो शायद हम 1 पीस खा के खुश हो जाएं। पर जैसे ही वो हम गले से नीचे उतारते हैं टेस्ट भी उतर जाता है, हैप्पीनेस भी उतर जाती है। एंड टू एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस वी ईट मोर। और ये उसका बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज वो रुकता नहीं है, इसलिए हमें और प्लेजर चाहिए। वी वांट मोर प्लेजर। इट इज टेम्पररी, फ्लिकरिंग, खत्म हो जाता है। या तो प्लेजर खत्म हो जाता है या इंजॉय करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि भैया अब आपको और पिज्जा नहीं खाना चाहिए, और मम्मा बोलती है कल से तू जिम जा और स्टीम फूड खा, बहुत मोटा हो रहा है। सो हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। एंड एट द लास्ट सारे प्लेजर यहीं भी रह जाएं, हम चले जाते हैं इसको छोड़ के। सो इट इज टेम्पररी, इट इज फ्लिकरिंग, इट इज नेवर इनफ। हम कितना भी इंजॉय कर ले हमें लगता है स्टिल वी आर थर्स्टी बिकॉज द वर्ल्डली प्लेजर डजंट टच अवर सोल, डजंट टच अवर हार्ट। हमें फुल कंटेंट नहीं करता है वर्ल्डली प्लेजर, इसलिए हमें लगता है हमें और चाहिए। और छोटे से प्लेजर के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है। आपने आधा पिज्जा खा तो लिया लेकिन उसको पचाने के लिए दिन में 1 महीना लगता है। उसका फैट निकालने के लिए न जाने कितने दिन का डाइट लगता है। एंड हमारे शास्त्र कहते हैं शुद्र आशा भूरि कर्माणि। जो प्लेजर हम लोग अचीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, जो हमें प्लेजर जैसा दिख रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है। शादी करनी है, बच्चे चाहिए, उसके लिए आपको एक फ्लैट चाहिए, उसके लिए आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, उसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो जाने कितने साल हम हार्ड वर्क करते हैं तब इसको अचीव कर पाते हैं, और अचीव करने के बाद लगता है पता नहीं चाहिए था कि नहीं चाहिए था। शादी नहीं करने वाले को लगता है शादी इज प्लेजर। एक आदमी रो रहा था बेचारा अपनी खटिया पे हरियाणा में और चिल्ला रहा था जोर से, लैला लैला। उसका दोस्त उससे मिलने आया था गुजरात से। गया उसमें, तो तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ तुझे? बोले मुझे लैला से शादी करनी है। अरे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर वाले मान नहीं रहे। बोलता है यार हम गुजरात के बड़े दिल वाले लोग हैं,
हम तेरी शादी सेट करेंगे। पापा के पास गया, उससे बात की, भाई ऐसे मत करो, क्या प्रॉब्लम है, ये लड़की अच्छी नहीं है, हमें जमती नहीं है, हमारी कास्ट की नहीं है। अब छोड़िए कास्ट वास्ट, हम आज के बच्चे, हम ये सब नहीं मानते, आप शादी कर दो इसकी। उसकी शादी हो गई। 1.5-2 साल बाद दोस्त वापस विजिट करने गया हरियाणा, सोचा जरा मिल के आऊँ कैसा है करण। वापस आया तो देखा अभी भी रो रहा है, लैला लैला, अरे अब क्या हुआ, चली गई क्या छोड़ के? बोले नहीं, मैं लैला लैला नहीं बोल रहा, मैं बोलूँ लहजा लहजा, अब मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ लोग इसलिए परेशान है क्योंकि शादी नहीं हो रही, और कुछ लोग इसलिए परेशान है कि शादी हो गई है। So the pleasure, the worldly pleasure is never satisfying. We may jump from one pleasure to another to find कि शायद हमें कुछ खुशी मिलेगी. And any pleasure you take, it is mixed with sorrow. It is not purely 24 karat pleasure. जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, head and tails, ऐसे ही इस material world में worldly pleasure is never just pleasure. It comes with bonus. And what is that bonus? That is associate joy, associate sorrow. जैसे हर मशीन के पीछे या हर पॉलिसी के नीचे लिखा होता है ना, कंडीशंस अप्लाई, ऐसे ही यहाँ पे हर सुख के नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो छोटा लिखा होता है कि हम देखना चाहते भी नहीं है और हमें दिखता भी नहीं है। इसीलिए वर्ल्डली प्लेजर हमें कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Well, मैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। What I have seen is that जो लोग ड्रग्स लेते हैं, and in some countries this is becoming legal, जैसे marijuana है, so they feel a certain pleasure. They forget whatever miseries they are facing, and they get a lot of pleasure from that. And we see that they are blissful while they take drugs. So what is the problem with this kind of pleasure? भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिव एवते। हमारे गाना भी है ना शाहरुख खान का, नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर पैकेट्स दिख सकते हैं प्लेजर के, लेकिन जब वो प्लेजर हम घर लेके आते हैं और हम उसका रिबन खोलते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? वही पुराना, वही स्टेल जिसे हम सुख समझ कर ले आते हैं, वही स्टेल दुख है, अच्छी पैकिंग में है। कभी कभी हम अमेज़न से सामान मंगवाते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, फोटो बड़ी अच्छी होती है। मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव सेंस टू डू इट। आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन, मुझे हर चीज़ को टच करके देखना होता है, ठोक के देखना होता है बराबर है कि नहीं। सो हम ड्रेस मंगवाते हैं, फोटो देखते हैं बड़ी अच्छी ड्रेस है, लेकिन जब आती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल अब तो दिमाग नहीं है। ऐसे ही शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं why we go to take drugs, why we seek such lower pleasure, because we are feeling empty inside, not content। और इंद्रियों से जो प्लेजर हमें मिलता है यही संस्पर्शजा भोगा। ये जो प्लेजर होता है, जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच से जो हमें प्लेजर मिलता है, वो कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं होता, और उसे और एक्सप्लॉइट करने के लिए हम और नीचे चलते चले जाते हैं, which is really very dangerous। जब ऑस्ट्रिच को कोई मारने के लिए आता है या उसके ऊपर कोई खतरा होता है, you know ऑस्ट्रिच, how many of you know all, हाँ? क्या करती है ऑस्ट्रिच? मुंह मिट्टी में डाल देती है। उसका वजन कितना है? 100 kg जितना होगा, वेरी बिग बर्ड, लेकिन उसका हेड कितना है? 100 ग्राम जितना है। और वो 100 ग्राम के हेड को मिट्टी में डाल के सोचती है कि मुझे जो आ रहा है ना हंटर, वो मुझे नहीं देख रहा है। इज इट ट्रू? हंटर के लिए तो इट्स वेरी इजी, उसको क्या लगता है, चलो कोई उसकी तरफ से रेजिस्ट भी नहीं करेगा मुझे, क्योंकि वो तो मिट्टी में अपना सर ऑलरेडी डाल के रखी है। वेरी इजी टू कटर, वेरी इजी टू कैप्चर है। दिस इज व्हाट द ड्रग्स डू विद यू।
हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, हमें शायद कुछ चीज़ों को सप्रेस करना है, दुखी हैं। जब कोई बच्चा ड्रग लेता है तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कोई लड़की वड़की का केस है क्या, अच्छे नंबर नहीं आए क्या। वी टेक इट एज पेन किलर, पर हम सब जानते हैं कि पेन किलर पेन को खत्म करता है कितनी देर के लिए, हमेशा के लिए। When you take painkiller, your pain is gone permanently. No. What happens? It is just a relief. It is not the solution. And moreover, जो बच्चे इस तरफ जाते हैं, करियर खतरे में आ जाता है, क्योंकि हम कब उसमें से स्लिप होके एडिक्ट हो जाएंगे हमें नहीं पता। बच्चे सोशली और फैमिली से कट हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं। Girls are more vulnerable because now they are addicted. They cannot control their senses. और ये कितना खतरनाक हो सकता है। मेरी मेट कुछ दिन पहले मेरे पास आई रोती हुई कि भाभी मुझे मदद करो, अनपढ़ है, उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं, क्या हुआ, मेरा बच्चा भाग गया है घर से। कितने साल का है? 12 years। 12 साल का है, कहाँ जाएगा, आ जाएगा। 1000 रुपया लेके भागा है घर से। तो मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपया खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएगा, 1000 रुपया है उसके पास, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा। नहीं भाभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने उसके लिए एक रीहैब सेंटर ढूंढा, क्योंकि वो बोली मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा है एक दो बार। हमने उसके लिए एक रीहैब सेंटर ढूंढा, वो उसके बच्चे को लेके गई। डॉक्टर ने उसको कहा, उसका गला चेक किया, उसको खांसी नहीं बंद हो रही है बहुत टाइम से, 1 महीने से खांसी नहीं ठीक हो रही। डॉक्टर ने उससे कहा कि ये बच्चा सिगरेट नहीं पी रहा है, ये गांजा पी रहा है। 12 साल का बच्चा, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ माय ओन मेड। और वो गांजा का क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि उसका पूरा गला जल गया है। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इसे तमोगुणी प्लेजर कहते हैं भगवत गीता में, which is from the beginning poison and in the end it is poison. ये आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके कैरेक्टर को, आपके करियर को, आपके इमोशंस को खत्म कर देता है। You're cut off. So this is, we have to understand. अब भी तो ये बहुत समझने की जरूरत है। मैं जब बड़े बड़े पोस्टर देखे सूरत में, say no to drugs, तो मुझे लगा कि ड्रग्स कहाँ है सूरत में, हमारा एरिया तो ड्राई एरिया है, हम तो यहाँ पे सुखी हैं, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी सूरत में आती है। But when I talk to my little friends sitting here, my daughters, my friends here, little friends, आदि जी आपको पता नहीं है बहुत ड्रग्स चल रहा है सूरत में। So we have to be very careful. हम बचपन में गेम खेलते थे, मुझे नहीं पता आप खेलते हैं कि नहीं, शायद मेरी उम्र वाले खेलते होंगे। ऐसे एक डोरी होती थी, ऐसे सारा मिंगल होता था, नीचे 4 ऑब्जेक्ट होते थे और आप ऊपर से एक रस्सी का छोर पकड़ के उसको ऐसे 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 पैन से नीचे लाते हैं और देखते हैं कि वो किस पे जाके एंड कर रहा है ना? खेलते हैं आप? न्यूज़पेपर में आता था, हमारे कॉमिक्स में आता था, ऐसे एक रस्सी ऐसे से बनी होती थी। तो जब मैं छोटी थी, हम लोग 4 भाई बहन थे, ऊपर ABCD छोर होता है और नीचे ABCD 4 चीजें होती हैं। एक शार्क होती है, एक मगरमच्छ होता है और एक प्यारा सा टेडी होता है। तो मैं क्या करती थी, उल्टा देखती थी नीचे से कि ये जो टेडी बियर है ना, वो कौन से वाले रस्सी के छोर पे खत्म हो रहा है, A। तो मैं बोलती थी मेरा A है, और सारे के सारे हार जाते थे, कोई मगरमच्छ के मुंह में, कोई शार्क के मुंह में, और मुझे मिल जाता था टेडी बियर। Do this when some pleasure comes to you. अगर कोई ऐसा प्रपोजल है जो लगता है कि अभी तो मुझे बहुत मजा आने वाला है, उसकी रस्सी खींच के देखो, उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। कहीं ये मुझे शार्क के मुंह में तो नहीं ले जा रहा। अगर वो आपको शार्क के मुंह में ले जाने वाला है, लीव दैट। ये प्लेजर नहीं है, ये प्लेजर की शक्ल में आप प्रे बन रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े बड़े सेंटर्स चल रहे हैं डी एडिक्शन के लिए। क्यों चल रहे हैं? अगर एडिक्शन में मजा होता तो सरकार को भी सब जगह अलाउ कर देना चाहिए था। चलो, डी एडिक्शन की क्या जरूरत है? वी नो हाउ हार्मफुल इट इज। यंग जनरेशन को तो और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। You have a promising future. How can you play with it? So addiction or no addiction? Yes?
ड्रग्स और नो ड्रग्स? No drugs. पक्का? थैंक यू. Well, what believing answer था? I want to believe you, but why shall I believe you? मतलब you know there are so many other people out there saying happiness इससे मिलेगा, happiness उससे मिलेगा. So why shall I believe you that the source of आप जो happiness की बात कर रहे हैं वही happiness से हमको happiness मिल सकती है? Why should I believe you? Why you should believe me? Of course. और ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाया ना. Is it homemade? No. ये मैंने अपने घर पे नहीं बनाया. ये जो फिलॉसफी है, ये जो सिद्धांत है, ये मैंने नहीं दिया है. It is given by the wise people of India, the wisdom of God, the wisdom of Bhagavad Gita, the wisdom of Vedas. वेद हमको सिखाते हैं how the world functions and how you should function in the world. और अगर हमें इतनी सी चीज आ जाए that how I should function in the world and how the world functions, it becomes easy for us to live and to live happily. So it is not my belief system. It is system already given by our people who are very experienced, who are very knowledgeable. बहुत सारे अब तो देखो मॉडर्न साइंस भी मानने लगी कि वेदास आर नॉट जस्ट माइथोलॉजी, अवर स्क्रिप्चर्स आर नॉट जस्ट माइथोलॉजी. हमारे स्क्रिप्चर्स कहीं कहीं पे तो अब प्रूफ भी हो रहा है कि आज की मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा एडवांस थे. तो ये उनका कंक्लूजन है दैट यू शुड लर्न हाउ यू शुड लिव योर लाइफ सो दैट यू नॉट, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खुद सुखी रहें, बल्कि हमारे वेदास हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कुछ ऐसा करें कि हमारे आसपास सब लोग सुखी रहें. एक्सप्लॉइटिंग कल्चर नहीं है हमारा. हमारा कल्चर है गिविंग कल्चर. इसीलिए देव कल्चर कहते हैं. और देव का मतलब वन हु गिव्स. और अब कब देंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक एप्पल चाहिए तो आप मुझे कैसे देंगे? कैसे देंगे? अगर आपके बैग में एक एप्पल है और मैं आपको बोलूं मुझे एक एप्पल चाहिए तो आप मुझे वो एप्पल दे सकते हैं. आपके पास नहीं है तो आप मुझे कैसे देंगे? So to give happiness you should have happiness, and to have happiness you should have certain things to follow. वेद हमें सिखाते हैं, शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जिंदगी को जिए. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. थोड़ी फुलिश लग सकती है सुनने में. मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा इसको हमारे स्क्रिप्चर्स में, I couldn't connect to it. It took me a little long to connect to it, you know. So एक आदमी बाइक चला के कहीं पे, उसकी बाइक पार्क थी एक पोल के नीचे, लाइट पोल के नीचे, एंड ही वाज सर्चिंग समथिंग विगरसली. ऊपर नीचे इधर उधर सड़क पे चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा था. प्रतीक जैसा एक अच्छा लड़का वहाँ पे आया. उसने सोचा कि ही इज इन क्राइसिस, लगता है कुछ प्रॉब्लम है. सर कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, क्या हुआ? मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ. क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मेरी चाबी गिर गई यहाँ पे, तो मेरी चाबी खो गई, मैं ढूंढ रहा हूँ. He said, I can help you. कौन सी चाबी आप मुझे बताइए. दोनों ने मिलकर ढूंढा, मिल नहीं रही. आपको पता है एग्जैक्टली आपने लास्ट टाइम चाबी को कहाँ देखा था, कहाँ गिरी थी? उसने बोला वो उधर गिर गई थी. अरे लेकिन चाबी उधर गिरी थी सर, तो आप इधर क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे उधर अंधेरा है ना, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ. यहाँ क्यों ढूंढ रहे? इधर लाइट है ना. You can understand that? We are born with happiness. We are part and parcel of Satchit Anand. We are made of Anand. But we are searching happiness. कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? At the wrong place. जहाँ पे खोई है वहाँ नहीं ढूंढ रहे. क्यों? अरे वहाँ तो अंधेरा है ना, लाइट में मिल जाएगी. कैसे मिलेगी सर? जहाँ गिर गई है भले ही अंधेरा हो, कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी, पर जहाँ गिरी नहीं है वहाँ कैसे मिलेगी? We are part and parcel of Satchit Anand. To the degree we are connected to the Ananda, we are in Anand. फिजिक्स का एक लॉ है, चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करती हैं.
हमने एक एग्जाम्पल देखा है, किशमिश, रेजिन्स, अगर शुगर सिरप में डालते हैं तो श्रिंक हो जाती है, और पानी में डालते हैं तो फूल के गुप्पा हो जाती है। तो अगर हम लैक ऑफ आनंद में हैं, तो सोर्स ऑफ आनंद से अगर कनेक्ट हो जाएंगे, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आनंद ट्रैवल करके अपने आप आ जाएगा। It is not me who is saying that. It is the wisdom of our scripture who is saying that. That to the degree you are connected to the Ananda or the source of happiness, you are automatically happy. Does it make sense? Well, it is making sense, but we see, as you were talking about various scriptures, तो हम लोग हमारे घर में महाभारत वगैरह आती है तो देखते हैं कि पांडवास, सीता मैया, these are good people in our history who had to suffer so much. So my question is that are all spiritualists, मतलब जो लोग spiritual happiness seek कर रहे हैं, are they always happy? Well, I would say yes, they are always happy. But as I said, these people suffered so much. We see Queen Kunti, who was mother of 5 Pandavas, she had to suffer so much. She lost her husband at such a young age. She had to take care of them. She lived in a forest, again went back to the palace, again came back to the forest. So we see her life was so miserable. How many with Pratik and how many are with me? Pratik के साथ कौन कौन है? The spiritual people are always, miserable, always दुखी आत्मा। बहुत बार जब हम क्लास कंडक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और बुरे लोग तो बहुत मजा कर रहे हैं, जो अच्छे हैं वही परेशान होते हैं। Do you have that question too? Yes, yes, yes. गर्दन ऐसे जा रही है, yes, yes, yes. So one thing is that Pratik, yes, ऐसा हमें लग सकता है कि वो लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं लाइफ में। हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं, द लैडर ऑफ हैप्पीनेस। आपके पास पता है, आपको पता है ऐसी कोई लैडर है हैप्पीनेस की? अगर मुझे पता हो तो मैं सबसे ऊपर वाले स्टेप पे चली जाऊं, ऐसा हमें लगता है। द लैडर ऑफ हैप्पीनेस, so the lowest happiness in the ladder is sensual happiness, the happiness we derive from senses. जैसे आंखों को क्या अच्छा लगता है? लड़के बोलेंगे अच्छी लड़की है मैं आजकल लड़कियां भी बोल सकती हैं, हाँ। अच्छी चीज को देखना प्लेजरेबल लगता है। We derive happiness by seeing something. We derive happiness by hearing something, by touching something, by smelling something, and by eating something. We have 5 sense organs, and we can derive pleasure by these 5 organs by touching their respective objects. अगर करेंसी वैल्यू निकाली किसी चीज की, जैसे कोई प्रोडक्ट हम बेचना चाहते तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, भैया इसका वैल्यू क्या होगा, इसका सेल प्राइस क्या रखें, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो अगर सेंशुअल प्लेजर को हम कॉस्ट वैल्यू में देखें अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, इसका वैल्यू है 10 पैसा, और इसके ऊपर लगने वाला परिश्रम है बहुत ज्यादा। इसीलिए भगवत गीता कहती है न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान होते हैं वो इस तरह के प्लेजर में आनंद नहीं लेते। उनको पता है कि भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मिलेगा कुछ नहीं। जैसे हमें लगे कि बड़ा अच्छा रसगुल्ला आया है मार्केट में, कितने का है? 2000 रुपए का एक है। 2000 का एक रसगुल्ला? अरे पागले के छोड़, नहीं खाना। एक रसगुल्ला खाने के लिए 2000 कौन खर्च करेगा? और अगर 20,000 हो तो, अगर 2 लाख हो तो हम सोचेंगे भी नहीं, क्यों सोचना है, नहीं खाना ऐसा रसगुल्ला। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी, द लोएस्ट प्लेजर। और हम देखते हैं आज की दुनिया में सारी दुनिया इसी प्लेजर के पीछे पागल है। थोड़ा सा अपने आसपास देखिए, देयर इज वन मोर प्लेजर व्हिच इज कॉल्ड मेंटल प्लेजर। कभी देखे आपने? आजकल होते हैं क्या कभी?
किसी भी प्यार में कविता लिखने वाले। आजकल लैपटॉप लवर्स होते हैं, गेम लवर्स होते हैं। यस, गेम खेलते कौन सी? पबजी। जब पबजी को खेलते हैं तो कितनों को भूख लगती है, they forget। आप उनको बोलिए चलो हम बीच पे जा रहे हैं, मम्मी बोलिए आप लोग जाओ, उनको लगता है अच्छा है सब लोग घर से बाहर जाएं और मैं आराम से पबजी खेलूं, क्योंकि घर वाले खेलने नहीं देते ना, तंग करते हैं। डोंट डू दिस, ये बहुत खराब है, तुम एडिक्ट हो गए हो। क्या खाने को मिल रहा है उसमें? नहीं। क्या सुनने को मिल रहा है उसमें? नहीं। योर माइंड इज एंजॉयिंग दिस। सो सेकंड स्टेयर पे माइंड प्लेजर है, क्योंकि आपको वर्ल्डली कोई चीज चाहिए ही नहीं एंजॉय करने के लिए। योर माइंड इज एनग्रॉस्ड। मुझे कोई पूछता आज से कुछ साल पहले कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बोलती थी कि मुझे कुछ बुक्स दे दो और एक कमरा दे दो, खाना दे देना 3 टाइम, मुझे बाहर नहीं जाना, आई वांट टू रीड सम बुक्स। मेंटल प्लेजर। करेंसी वैल्यू 10 rupees, from 10 paisa to 10 rupees. And above this is intellectual pleasure. The fellow sitting in stripes, he said, to achieve the goal of life is my happiness. Yes, that is intellectual happiness. Making some goals, achieving some goals. जिस बच्चे को मेडिकल में निकलना है, नीट में निकलना है, वो 12 घंटे पढ़ता है, वो टीवी नहीं देखता, वो बाहर घूमने नहीं जाता, पिज्जा खाने नहीं जाता, घर की शादियों के फंक्शंस भी अटेंड नहीं करता, कंप्लीटली इंडोर्स इन स्टडीज। क्यों? ही हैज वन गोल, मुझे अचीव करना है। बीमार भी होगा तो भी पढ़ाई करेगा। डॉक्टर उसको बोलेगा कि बेटा आपको रेस्ट करना है, आपको पढ़ना नहीं है ज्यादा, मम्मी भी मना करेगी, फिर भी वो पढ़ेगा, बिकॉज उसके माइंड में एक क्लियर गोल है। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, क्या करेंसी वैल्यू होगा इसका? दे आर कंट्रीब्यूटर्स, बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, कुछ गोल्स उन्होंने बनाए हैं। करेंसी वैल्यू 100 rupees। इसमें भी बाहर से आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर एक हैप्पीनेस है, उसका करेंसी वैल्यू है अनलिमिटेड। एनी गेसेस व्हाट इज दैट? किस किस को वो अचीव करना है? किसी को नहीं। Nobody wants to be happy, eternally happy. Yes, and that happiness is spiritual happiness, the happiness of soul. आप तो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हम इमल्शंस बनाते हैं, यू नो क्या करते हैं? हम पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं, शेक करते हैं विगरसली, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो क्या होता है? ऑयल सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। सोल का प्लेजर अगर पानी के जैसा है, तो वर्ल्डली प्लेजर ऑयल के जैसा है। वी ट्राई टू मिक्स देम विगरसली to enjoy. We want to, you know, enjoy eternally. We want to enjoy maximum, and we try to vigorously mix it. पर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सोल का प्लेजर वर्ल्डली प्लेजर से अलग है, और इसीलिए वर्ल्डली प्लेजर लिमिटेड है और हमें अनलिमिटेड प्लेजर चाहिए। ये दिल मांगे, हम हमेशा रोते रहते हैं, ये दिल मांगे मोर। So Pandavas, the spiritualists, they are spiritually so high. They are situated on unlimited happiness. जैसे छोटे छोटे प्लेजर हमें अफेक्ट नहीं करते, वैसे ये छोटे छोटे पेन्स भी इफेक्ट नहीं करते। जैसे हम फ्लाइट में कितने लोग, आई एम श्योर सब लोग बैठे हैं फ्लाइट में। जब हम यहाँ से फ्लाइट के लिए बैठते हैं, तो हमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिखती हैं। कुछ बिल्डिंग्स तो इतनी ऊंची होती है, ऐसे करके देखना पड़ता। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करता है, तो क्या होता है? बिल्डिंग्स छोटी होने लगती हैं, और एक समय पे तो आके दिखाई भी नहीं देती। फिर आप सिग्नल पे रुकते हैं क्या? आपका प्लेन सिग्नल पे रुकता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, अरे हमारी कार तो सिग्नल तोड़े तो फाइन हो जाता है। प्लेन के ऊपर कोई सिग्नल नहीं है, किसी सिग्नल पे नहीं रुकता, नहीं रुकता। You are above the pains and pleasures now, the worldly pain and worldly pleasures now. कुंती महारानी की प्रेयर्स में एक प्रेयर है बड़ी सुंदर, I never dare to
pray this like Lord. She's very daring lady. She's praying. Vipada santu ta shashvat tatra tatra jagatguru bhavato darshanam yasya apuna bhavadarshanam. Oh Lord Krishna, you're going. जब हस्तिनापुर से भगवान जाने लगे, आप जा रहे हैं. जब तक हमारे जीवन में तकलीफें थी आप हमारे साथ थे, और अब सब कुछ सेट होता हुआ दिख रहा है तो आप जा रहे हैं. इससे तो अच्छा था कि हमारे जीवन में कैलामिटीज थी, कम से कम आप तो साथ थे. सो गिव मी मोर कैलामिटीज इन लाइफ. बहुत सारे दुख तो हमारे जीवन में, क्योंकि जब दुख होते हैं तो आप दिखते हो, सुख आते तो आप दिखते नहीं हो. हु इज मोर इम्पोर्टेंट, द प्लेजर्स और द प्लेजर गिवर? हु इज इम्पोर्टेंट? हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो हम भगवान से मांगते हैं. हम भगवान को मांगते हैं या हम भगवान से मांगते हैं? हम भगवान से मांगते हैं. दुर्योधन ने भगवान से मांगा. क्या मांगा? रिसोर्सेस. आपकी नारायणी सेना मुझे दे दो. ही डिमांडेड रिसोर्सेस. अर्जुन ने क्या मांगा? क्या मांगा? कृष्ण को मांगा, कृष्ण से नहीं मांगा. कृष्ण ने कहा, ये तो उल्लू अर्जुन, तुमने ठीक से मेरी कंडीशंस नहीं सुनी. आई विल कम बट आई विल नॉट फाइट. मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अकेला आऊंगा. और दूसरी तरफ डिवीजन में, जो डिवीजन है, इस तरफ मैं हूँ अकेला और निहत्था, और इस तरफ मेरी नारायणी सेना है, और नारायणी सेना ने कभी हार नहीं देखी थी आज तक. अनबीटेबल नारायणी सेना. सोच के देखिए आप क्या मांगते हैं. क्या मांगते हैं आप? किस कैटेगरी में हैं हम, दुर्योधन या अर्जुन? We see the things externally because we are practiced and conditioned to see the things externally. इसलिए हमें लगता है कि पांडवों के जीवन में बहुत दुख था. उन्होंने दुख को चुन लिया क्योंकि वो वाइज थे. उन्हें पता है कि वर्ल्डली पेन एंड वर्ल्डली प्लेजर आर सेम, but eternal happiness is connection with the Lord. And the Arjuna chose Lord Krishna and they were never unhappy. मैं एक बहुत सुंदर किस्सा पढ़ रही थी दुर्योधन का. दुर्योधन को जब पता चला कि पास के जंगल में जब वनवास था, पास के जंगल में पांडवास रह रहे हैं, and they were not allowed to enter any city, they were not allowed to eat cooked food. That was the meaning of being in jungle, वनवास. दुर्योधन को पता था भीम को खीर बहुत पसंद है, तो उसने सोचा उसको थोड़ा टॉर्चर करते हैं. ऑलरेडी दे आर बीइंग, अकॉर्डिंग टू दुर्योधन, दे आर इन टॉर्चर, क्योंकि वनवास में रह रहे हैं, ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, सोने की कोई जगह नहीं है. तो जब दुर्योधन वहां पहुंचा, उसने बड़ा सा पतीला चढ़ाया आग पे, उसमें खीर बनाने के लिए चावल और दूध डाले और उसको पकाने लगा, केसर और इलायची डाल के, बादाम और अखरोट डाल के. उसको आवाज सुनाई दे रही थी कि पास में ये पांचों अपनी माता के साथ बैठे हैं और बहुत ठहाके मार रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, इतना जोर से हंस रहे हैं कि यहाँ तक आवाज आ रही है. और वो सोचने लगा कि सुखी कौन है? ये जो जंगल में रह रहे हैं ये सुखी हैं, या मैं जो यहाँ पे आया हूँ उनको जलाने के लिए, वो सुखी है? जब हम जलता हुआ कोयला हाथ में उठाते हैं और सोचते हैं कि मैं फेंक के हर्षिता को मारूंगी, जब मैं जलता हुआ कोयला उठाऊंगी तो पहले किसका हाथ जलेगा? मेरा हाथ जलेगा. उसके बाद मैंने निशाना मारा और हर्षिता बड़ी स्मार्ट है, बस ऐसे हो गई, उसको तो लगा ही नहीं. This was the situation of Duryodhana and Pandavas. He was trying to torture them, but he himself, being envious, being krodhi, being lobhi, he was being tortured by his own bad things. So Pandavas were never unhappy; they were happy. So, well, I want to ask कि आप जो ये plane की बात कर रहे थे, जैसे car and plane. So now that we are sitting in a car, how can we go to this plane? I mean, what does this plane actually mean? ये higher consciousness का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी प्लेन में जाने के लिए कुछ लगता है क्या? क्या लगता है? she's saying पैसा लगता है. भाई पैसा. Everything is payable. हर चीज का कुछ न कुछ चार्ज है. Nothing comes free in this world. हम इस भौतिक जगत में जब आते हैं ना, इस मटीरियल वर्ल्ड में जो हम यहाँ पे सब एग्जिस्ट कर रहे हैं,
अपने अपने कर्मों और कंडीशंस के अनुसार हमारी लाइफ में एक चक्र चलता है जिसे कहते हैं कर्माफिकेशन। वी गो थ्रू प्लेजर्स, वी गो थ्रू पेन। कभी कभी हम कोशिश भी नहीं करते और हमारे जीवन में चल के सक्सेस आती है, और कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेस हाथ ही नहीं आती है। कर्माफिकेशन। कृष्णा सेज फॉर दिस मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, you have to tolerate it. But the sadhakas who are trying to go to higher, उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं। अगर बारिश होगी तो जो साधका है या जो शुद्ध आत्मा है उसके बॉडी पे बारिश नहीं पड़ेगी क्या? वो गीला नहीं होगा क्या? होगा। But he has a choice. He can open the umbrella because he has the umbrella. So to go to higher consciousness, to minimize the pain. ऐसा नहीं इस भौतिक जगत में पेन्स और प्लेजर्स नहीं होंगे, but to minimize them by going to higher consciousness. To the degree you are connected to the higher consciousness, to that degree you feel happiness. To go to higher consciousness, we have some process. अच्छा, IT में आए, आप इंजीनियर बनेंगे, आप कैसे इंजीनियर बनेंगे? एक व्यक्ति जो MBBS कर रहा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, कैसे डॉक्टर बनेगा? कैसे बनेगा डॉक्टर? कॉलेज जाके कोर्स करना पड़ेगा। यस, हाँ, हम सब जो भी हम एक गोल लेकर आए हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, उसके लिए एक कैरिकुलम है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करके हम कुछ सीखते हैं। किसी के अंडर में रह के MBBS की किताबें, IT की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, but still we need an institution, we need some teachers, we need some practical experience to become a good engineer or to become a good doctor. So similarly, to become a happy person, to become a person who is least bothered by pleasures and not actually bothered but attracted to the worldly pleasures, which is a trap actually, and least bothered by the worldly pains, we need to follow some process. But in this day and age where we are seeking fast food, fast transportation, everything is at our tips, and you're talking about a process which indicates that it will take a longer time. So I completely agree with you that yeah, this might work out for me, but just for future promise of happiness, why should I leave the happiness that I'm receiving now? अभी जो मेरे को खुशी मिल रही है, खाली फ्यूचर में जो खुशी मिलेगी वो प्रॉमिस से मैं अभी की जो खुशी मिली है उसको क्यों छोड़ूं? How can I be happy now? What does spirituality have that can make me happy now? देखो, हर कंपनी अपना अपना ऐड करती है ना, है ना? हर कंपनी अपना अपना ऐड करती है। Even Krishna came here. परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ हर युग में। ठीक है, असुरों को मारते हैं, ठीक है, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन एक और काम के लिए आते हैं, अपनी कंपनी का ऐड करने के लिए आते हैं। See, I can give you eternal happiness. Come with me. पहले ये समझने की कोशिश करते हैं प्रतीक कि ये प्लेजर से मेरे जीवन में डिफरेंस क्या पड़ जाएगा, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा फास्ट हमें अवेलेबल कैसे हो ताकि हम उसे नाउ एक्सपीरियंस कर सकें। वो एक कहावत है ना, क्या आती है, ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये तो जमाने का वो है, यू नो, बच्चों का टैग है कि हम जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे डील करता है एक व्यक्ति जब अलग अलग स्तर की कॉन्शियसनेस पे होता है। मंकी एंड द कैप्सुलर, हमने सुनी है ये कहानी, है ना? हमने सुनी है। ये मंकी एंड द कैप्सुलर को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके समझने की कोशिश करें कि अलग अलग कॉन्शियसनेस का व्यक्ति प्रॉब्लम को कैसे डील करता है, तो शायद हम अट्रैक्टेड होंगे हायर कॉन्शियसनेस पे जाने के लिए और थोड़ा सा प्राइस पे करने के लिए।
अगर बाजार में नई मिठाई की दुकान आई है ना, तो वो अपनी मिठाई को ऐसे बड़ी से पीस को 6-7 टुकड़ों में काटता है और फिर आपको बोलता है मैम ये टेस्ट कीजिए, और आप मुंह में डाल दोगे वाह ये तो बहुत अच्छी है, और दो, तो क्या बोलेगा? नाउ यू हैव टू पे फॉर इट. सो मंकी एंड द कैप्सुलर. कैप्सुलर सो रहा था, बहुत सारे मंकीज आए, सारी कैप्स उठा के पेड़ पे चढ़ गए, और कैप्सुलर सोच रहा है कि मुझे मेरी कैप्स वापस चाहिए. Now the capsular, if he is on the platform of tamoguna, the lower consciousness or the lowest consciousness, वो कैसे डील करेगा मंकी के साथ? जो व्यक्ति lowest consciousness में है, उसमें और मंकी में ज्यादा फर्क नहीं है. They are on the same consciousness. और जिस प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम है, कॉन्शियसनेस की जिस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम है, उसी प्लेटफॉर्म पे सोल्यूशन नहीं मिलता. इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल they are crying with the problem and they are part of the problem because they don't find solution. They are not part of the solution. So the person who is in tamoguna, he will scream, he will cry, depress हो जाएगा, गुस्सा करेगा, प्लीज मेरी कैप्स मुझे वापस करो. So समझ भी नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए. Suicidal tendencies, anxiety, depression, ये सब लक्षण हैं जब व्यक्ति तमोगुण के प्लेटफॉर्म पे होता है. हम डिसीजन नहीं ले पाते, हमें प्रॉब्लम ठीक से समझ नहीं आती है, हमारी अवेयरनेस इतनी कम है कि हम चीजों से डील नहीं कर पाते. कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रजोगुणा. भगवद गीता सेज द पर्सन हु इज रजोगुणा, इफ द कैप्सुलर इज अ रजोगुणी पर्सन, ही विल बी वेरी रिवेंजफुल. उसे ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है मेरी लाइफ में. हम ब्लेम करते हैं ना कि मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही थी, तूने खराब की है मेरी लाइफ. माय प्रॉब्लम हैज प्रॉब्लम बिकॉज यू क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, और मुझे इससे बदला लेना है. मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. अपने घर से 4 पैसे लगा के भी इसको तो मुझे बदला लेना ही है. मेरी एनर्जी लग जाए पर मुझे उससे रिवेंज लेना है. This is called platform of rajoguna of consciousness. ऐसा व्यक्ति पत्थर उठाएगा और मंकीज को मारेगा, सोचेगा इनको मारूंगा और मेरी कैप्स वापस आई तो ठीक है, पर कम से कम इनको छोड़ूंगा नहीं. हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, या हम इस तरह की बहुत सारी फाइट्स देखते हैं जो इसी स्तर पे होती हैं. If a person is on satoguna, he will sit composed, he will look to the problem. He will try to calculate, because he's on higher platform, try to calculate how to solve this problem. So the person on Satoguna platform is part of solution. हम हनुमान का जो सफर है लंका के लिए, उसमें हम देखते हैं कि जब फर्स्ट हनुमान जी क्रॉस कर रहे हैं ओशन को, तो सुरसा प्रकट होती है. सुंदरकांड पढ़ा है किसी ने यहाँ पे? Our scriptures are full of wisdom. ऐसे ही जब हम खाली पढ़ लेते हैं ना ऊपर ऊपर से, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या हमें सर्व कर रहा है. इट इज कोडेड लैंग्वेज, इसलिए हमने आज की इसका नाम भी रखा है हैप्पीनेस पासवर्ड डीकोडेड. सो सुरसा बाहर आती है, सुरसा कहती है यू कांट गो, तुम्हें मेरे मुंह में से गुजरना पड़ेगा. हनुमान बोलते अच्छा तुम मुझे निकलोगी? बोलती है हाँ. हनुमान जी अपना कद बढ़ाते हैं. सुरसा क्या करती है? छोटी सी सुरसा क्या करती है? वो भी अपना कद बढ़ाती है. हनुमान के पास शक्ति है, उस डिमिनस के पास भी शक्ति है. हनुमान जी 100 योजन के हो जाते हैं, 1000 किलोमीटर बड़े. सुरसा भी उतना ही बड़ा मुंह खोल के खड़ी हो जाती है. और हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, मैं 1000 फीट का हूँ और ये प्रॉब्लम 1001 फीट की है, मेरे से अबव है. लेकिन उनका कॉन्शियसनेस उस प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है. What he does, वो एकदम से छोटे हो जाते हैं. यस, वो एकदम से छोटे हो जाते हैं, उसके मुंह के अंदर एंटर करके बाहर आ जाते हैं. बोलते कंडीशंस फुलफिल्ड, नाउ यू लीव मी. एंड दिस इज हाउ हिज इंटेलिजेंस वाज चेक्ड. द हायर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड. इसलिए अगर हमें उसके लिए कुछ प्राइज देना पड़े ना, तो देना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि हम फील करना चाहते हैं, नाउ कौन कौन फील करना चाहते हैं?
Who is it, Pratik? Who wants to feel the pleasure, the eternal pleasure, or the झलक of eternal pleasure? झलक दिखला जा. कौन कौन feel करना चाहता है? If more are with me, then we can try. कहते हैं, करण बोल रहा है बाजू वाले को, एक हाथ ऊपर कर. अगर लोग कम हुए तो शायद एक्सपेरिमेंट होगा नहीं. So, of course we are pleasure seekers. Of course we try. We keep on trying things just to know how we feel. एक छोटी सी झलक हम उस प्लेजर की देखना चाहते हैं जो आत्मा को टच करता है. आपको पता है हम दो चीजों से मिलके बने हैं. फिजिक्स स्टूडेंट्स है ना बहुत सारे यहाँ. दो चीजों से मिलके बने हैं. कौन कौन सी दो चीजें हैं? The body and the living force inside us is soul. Everybody agrees? भारत में है तो इसका तो एग्री करना ही पड़ेगा. बचपन से सुन के बड़े हुए हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है. आई रिमेम्बर जब मैं किसी क्लास में गई थी और मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. भगवद गीता का प्राइमरी चैप्टर है ये. So she said, प्लीज आप ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लगता है मैं भूत हूँ. क्योंकि हमें लगता है आत्मा तो हमने हॉरर मूवीज में ही देखी है खाली. But we are made of two things. This body, 5 elements, and the living force inside us, that is soul. हम हर वो चीज करते हैं जो हमारे शरीर को सुख देती है. पार्लर जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा देखते हैं, और इस पार्ट को, हमारे एग्जिस्टेंस के इस पार्ट को बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं. लेकिन एक पार्ट और है हमारा जिसे हम इग्नोर करते हैं. And what is that? The soul part of our existence. So आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे for 5 minutes. उसके बाद हम we will invite the questions also. If anybody has any question, they can ask. कि हम कैसा फील करते हैं जब हमारी सोल के पास कुछ फील जाता है तो उसको कैसा फील होता है. So everybody will sit straight and long. Yes, आप अपने बैग साइड में रख सकते हैं. We'll do just 5 minutes experiment, not much, longer. We'll close our eyes. AC चल रहा है, आप अच्छे से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. A little smile on your face. I will chant, and then you will repeat with Pratik. Yes, Pratik, are you ready for the experiment? Let's see. अगर हम प्लेन में जाते हैं तो प्लेजर्स और पेन्स जो वर्ल्डली हैं वो कितने मिनिमाइज होते हैं. हमें इस 5 मिनट में क्या फील करना है? हमें फील करना है the peace in our heart, because bliss का रास्ता peace से होकर जाता है. हम सबको जीवन में शांति चाहिए, शांति चाहिए. No, शांति is not goal of life. The bliss is goal of life. इसीलिए भगवद गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम्. जो व्यक्ति अशांत है उसके जीवन में सुख कैसे आ सकता है? So we will feel the peace in the heart, and through the peace we will go to bliss. So close, everybody, close your eyes, sit straight and long. मैं जो बोलूंगी प्रतीक के साथ आप रिपीट करेंगे.
cushion of bliss. Your mind is cool, and a focused mind can do the things in lesser time. So you can't say that I don't have time to chant some rounds. Thank you so much. So what do you say, Pratik? Is what calming? I must say, this worked. How many of you are with me? Worked? It worked? Yes? Little bit, thoda. Yeah. So well, I remember a definition of crazy by Albert Einstein. He said that craziness is doing the same thing again and again and expecting a different result every time. So I think, I feel that I need to change something in my life. That is for sure. So as a beginner, what would you suggest? Like the baby steps, like you said, the ladder of happiness. So the first step in this ladder of happiness, I mean, I really want to know what could be the first steps in this journey. I'll start with a story. In 1970, the founder Acharya of ISKCON, Srila Prabhupada, he traveled to West to give this wisdom of Vedas, the wisdom of Bharat, the real treasure of Bharat, to give it to the Western people. क्यों गए? एक रीजन तो ये था कि हमें इम्पोर्टेड बड़ा पसंद है, नहीं? हमें अगर कोई कहे कि अरे भाई ये तो पुराने ज़माने की बात है, तो हमें लगता है कि हमें नहीं फॉलो करना। और अगर कोई कहे कि अमेरिका आजकल हल्दी का पेटेंट करवा रहा है, तो हमें लगता है अरे हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सदियों से हल्दी को एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें तब तक पता नहीं था उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जब तक अमेरिका ने उसको पेटेंट नहीं करवा लिया। नीम भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसकी दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन पेटेंट किसके नाम का है? अमेरिका का है। सो हमारी कल्चर को वी वर नॉट वैल्यूइंग। प्रभुपाद वेंट टू वेस्ट टू सी कि वहाँ के लोगों को हम इस कल्चर को देखते हैं। जब 70s में प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहाँ पे एक हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। आई थिंक कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे हिप्पी मूवमेंट के बारे में। हिप्पी मूवमेंट में अच्छे घरों के, वेल सेटल्ड फैमिलीज के, पढ़े लिखे वो बच्चे थे जिन्हें सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ने थे। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, एजुकेशन छोड़ दी, प्रॉमिसिंग करियर और जॉब्स छोड़ दिए, टू सी द रियल हैप्पीनेस, कि हमारी हैप्पीनेस इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं है, हमें अलग तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। वी वांट टू फील हैप्पीनेस एंड दे फेल इनटू ड्रग्स, डिफरेंट ड्रग्स। ये तो गांजा तो छोटी सी चीज़ है। दे वर टेकिंग LSD, marijuana, I just know the names, not more than that. And I know they are high drugs. So they were taking drugs. They were breaking all the rules. हमें पता है फ्रीडम का मतलब क्या लगता है? सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। This is freedom for us. And they were trying to feel that freedom and pleasure in it. उनका एक नारा भी था, जो 30 के ऊपर है उनके ऊपर विश्वास मत करो। They all are stereotypes. इनके ऊपर विश्वास मत करना। ऐसे में 70 years के श्रील प्रभुपाद वहाँ गए। छोटी बस्ती में रहते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे छोड़ के आए थे, प्रॉमिसिंग करियर छोड़ के आए थे, पावड़ी में रहते थे, झोपड़पट्टी आप कह सकते हैं। और प्रभुपाद वहाँ पे टॉम स्क्वायर पार्क में जाके पेड़ के नीचे करताल उठाई, और जो हमने अभी किया the kirtan, he started doing kirtan. He had no audience. We are so lucky that sir, they invited us, they forced you or encouraged you to sit here to listen us. We have audience. Prabhupada के पास audience नहीं था, उनके पास कोई नहीं था सुनने वाला, but he had faith in the Vedic wisdom and in the names of Lord. So he started doing kirtan, और धीरे धीरे वहाँ पे बैठे हुए लोगों को ये फील हुआ कि कुछ तो यहाँ से आ रहा है जो हमें अच्छा लग रहा है। एंड दे स्टार्टेड सिटिंग विद श्रील प्रभुपाद। एंड देन प्रभुपाद ने उनको बच्चों की तरह सब कुछ सिखाया। हम एक साधु का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में है,
भले ही वो साधु असली साधु नहीं हो, तो भी अगर कोई साधु के वेश में है तो हम उसे प्रणाम करते हैं, माँ बोलती है कि कुछ दे दो आया है तो। लेकिन प्रभुपाद जहाँ गए थे वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं था। उनमें कैसे चेंज आया? द बेबी स्टेप्स जो प्रभुपाद ने उनको प्रिस्क्राइब किए, दैट आई एम प्रिस्क्राइबिंग टुडे फॉर यू ऑल। वी आर आल्सो बेबीज, स्पिरिचुअली वी आर बेबीज। इवन आई एम अ टॉडलर स्पिरिचुअली, I am also learning every day. So let's start from some little baby step given by Srila Prabhupada. The first A, B, C, D. हम ऐसे ही सीखे थे ना नर्सरी में, A, B, C, D से. So A is for association of eternally happy people. What is A? Association of eternally happy people. Find some people who are spiritually happy, well situated and feeling happiness inside. कुछ समय निकालिए, उनके साथ बिताइए, शायद हफ्ते में एक बार। अच्छा, हम एक प्रोग्राम भी करते हैं, प्रतीक इज दैट इज BSc ऑफ हैप्पीनेस, बैचलर ऑफ साइंस होता है, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस। इट्स अ साइंस, जैसे साइंस होता है ना, हम प्रूव कर सकते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ। हम जिस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं उसे साइंस कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो इन अ साइंस एंड प्रूवन साइंस। सो वी रन वन प्रोग्राम ऑल्सो फॉर द यंगस्टर्स, दैट इज BSc ऑफ हैप्पीनेस. यू कैन जॉइन दैट. सो A इज फॉर एसोसिएशन ऑफ हैप्पी, spiritually happy people. B is for books. हम बहुत सारी बुक्स पहले ही पढ़ रहे हैं मैम, हमें कहाँ फंसा रहे हो, हमें और बुक्स नहीं पढ़नी है। थोड़ा सा समय अगर हम स्पिरिचुअल बुक्स के लिए निकालें, हमारी वैदिक विजडम के लिए निकालें, जो हमारे पास हमेशा से था, हम चीज़ों को बेटर मैनेज कर सकते हैं, हमारे टाइम को, हमारी एनर्जी को, हमारे फोकस को। और आपको लगेगा कि 5 मिनट इसको पढ़ने से मेरे बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, and I still have time. So find some time to read some valuable books. 7 habits of successful people में एक हैबिट क्या है पता है आपको? क्या है? Reading? No, not just reading books. वो लिखते हैं कि मैं ऐसी किताब रोज पढ़ता हूँ जिसे पढ़ने के बाद उसको सम्मान के साथ ऊपर रख देता हूँ। पढ़ते तो हम सब हैं, कभी बाथरूम में भी पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद ऐसे फेंक भी देते होंगे और उसको रद्दी में भी डालते होंगे। ये भी एक लिटरेचर है, साहित्य है। लेकिन ऐसा लिटरेचर जिसको पढ़ने के बाद मैं सम्मान के साथ ऊपर रखता हूँ, ऐसा साहित्य मैं रोज पढ़ता हूँ, which makes me successful in life. Whether it is Einstein, he believed in God, whether it is Mr. Posture, Mr. Gandhi, they all believed in this wisdom. Find some time to read maybe one page and it will give you wonderful direction in your life. जब आपके सामने अंधेरा होगा तब आपके सामने प्रकाश की तरह आपको सहायता करेगा. And C is for meditation. Meditation, chanting meditation. Chanting the name of the Lord with meditation, जो हमने अभी अभी किया. Maybe you can start with 5 minutes, सुबह या शाम 5 मिनट. और ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि मेडिटेशन हमारे सेंसेस को काम करता है, हमारे माइंड को फोकस करने में मदद करता है. As student we need this, so you can chant. प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि कैसे हमें chanting करनी है. And D is to decode the purpose of life, which is surely अभी अभी हमने डिस्कस किया happiness सबकी अलग अलग है. And happiness is goal, but the other things we are pursuing is medium to happiness. They are not happiness. Our career is not happiness. It is medium to happiness. So decode the purpose of your life and very tasty. D is for diet. अगर हम सतोगुणी खाना खाते हैं, अगर हम ऑफर्ड फूड खाते हैं,
हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। सो मन को फ्रीडम हमें बाहर से नहीं चाहिए, हम अपने मन के ट्रैप में हैं। फ्रीडम हमें अपने मन से चाहिए। तो फ्रीडम मन को नहीं चाहिए, फ्रीडम मन से चाहिए। हमें मन को अपने अंडर में रखना है। और इस समय हम मन के अंदर में, मन कर रहा है समोसा खाना है, डॉक्टर ने बोला है टाइफाइड है नहीं खाना है, हम किसकी सुनते हैं, डॉक्टर की कि मन की? सो हु इज द मालिक, हम या मन? मन हमारा मालिक है, हम मन के मालिक नहीं है। सो बाय ईटिंग अ सतोगुणी डाइट और ऑफर्ड फूड वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। और भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि अगर मन आपके कंट्रोल में है तो उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और अगर आप मन के कंट्रोल में हैं तो उससे बुरा कोई स्वामी नहीं है। He is the worst master and best slave. So it is in your hand. What do you want? आप उससे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं या worst enemy? These are the little steps Prabhupada took to make those hippies हैप्पीज, जिनको पता भी नहीं था कुछ, उनको प्रभुपाद ने हिप्पीज से हैप्पीज बनाया। सो यू कैन गेट हेल्प। अगर आप में से कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या कुछ लोग इसको आजमा के देखना चाहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। यस, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम students also if they have any. Anybody in the audience has any question? Any kind of question? Ma'am, it's not a type of a question, we need a solution for it. So my question is about addiction. So how to मेरे को ऐसे phones का addiction है, so जब सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती because of phone. So उसको छोड़ना है, बाकी सब लोगों को भी प्रॉब्लम है, आई थिंक सो लाइफ में चलते होगी सबके प्रॉब्लम्स, तो वही एडिक्शन को दूर करना है। सी, एडिक्शन का एक रूल है, जब हमें लोअर एडिक्शन होता है, अगर हायर मिल जाए तो लोअर छूट जाता है ना? इज इट ट्रू और नॉट? यस। अगर हम किसी चीज के आदी हैं, अगर हमें उससे बेटर कुछ मिल जाता है तो हम लोअर छोड़ देते हैं। So to become de-addict, ऐसे कहते हैं कि एक विचार का बीज अपने मन में बोते हैं तो आगे जाके वो धीरे धीरे संस्कार बनता है, संस्कार का बीज आगे जाके एक हैबिट बनता है, और हैबिट का जब हम बीज बोते हैं तो आगे जाके वो हमारे जीवन में हमारा भविष्य, हमारी डेस्टिनी बन जाता है। So to de-addict we need higher taste. भगवद गीता से परम दृष्ट्वा निवर्तते। If we have higher taste, the lower taste itself चला जाता है। So if you join, you know, something which can give you some higher taste. Phone देखना, हाँ डेफिनेटली पूरा दिन एडिक्ट होना तो बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है जो कंटेंट हम देखते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में, हमारे सेटल माइंड में कंटिन्यूस जाता है और एक तरह से हमें मजबूर कर देता है वो करने के लिए जो उसमें दिखा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम वो करने लग जाते हैं जो हम देख रहे थे। पहले तो सिर्फ देख देख के मजा आ रहा था, फिर हम उसे ट्राई करना चाहते हैं और फिर ट्राई करने में हम फंस जाते हैं, एक मेज में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलने का हमें रास्ता ही नहीं मिलता, और कभी कभी हम हेजिटेशन से उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। सो इफ यू रियली वांट टू चेंज द हैबिट, यू कैन नॉट किल इट, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट। एक अच्छी चीज से उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक हायर टेस्ट से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यू कैन जॉइन प्रतीक, ही हैज 60 बॉयज अंडर हिम एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद हिम with good habits. Good habit itself is a class we give, you know, it's a seminar we give how we can substitute bad habits with good habits. अगर हमारे पास समय है और उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग तो अपने आप हो जाएगा, और एक मॉन्स्टर तो हमारे हाथ में है हर समय हमें ड्रैग करने के लिए। So find some higher taste, and for higher taste you can contact him. He can engage you in higher taste.
अगर आप मोबाइल देख भी रहे होंगे तो कंटेंट ऐसा होगा जो आपको हार्म नहीं करेगा. द प्रॉब्लम इज द कंटेंट इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल. मैं कभी कभी बच्चों को जाके बोलती हूँ कि तुम ना, हम वही चीज़ देखेंगे जो हम साथ मिलके देख सकते हैं. दिस इज हाउ वी ट्राई टू लाइन सम बाउंड्री कि कुछ समय हम घर में मोबाइल नहीं देखेंगे. हमारे घर में राधा ने रूल बनाया है कि हम सब मिलके डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे और उस समय कोई अपना मोबाइल नहीं उठाएगा. सो वी कैन find some little solutions, and the permanent solution is we should have some higher taste to leave the lower taste. अर्षिता, उसको एक बुक दो, जो क्वेश्चन पूछेगा उसे एक बुक मिलेगा. ये सजा है, एक प्राइज मुझे पता नहीं है. प्लीज क्लैप फॉर हिम. यस, आई डोंट नो किसके पास कौन सी बुक आती है, पर ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्पिरिचुअल बुक्स लाइव होती हैं. स्पिरिचुअल बुक्स अपना टारगेट खुद चुनती हैं. वो उसी के पास जाते हैं जिसको ज़रूरत होती है. तो प्रोबेबली ही इज इन नीड, और इसीलिए वही बुक उनके पास गई है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड इट. थैंक यू. यस. Question is, why does religion spread unhappiness? Like, it's a hot topic for every time. कि हर बार politicians हो या कुछ भी हो, but वो past से चला ही आ रहा है religions के related. So why does it? Well, yes, it's a hot topic. When religion is to give us peace, why religion gives us fights and unhappiness? Very nice question. देखो, एक बड़ा सुंदर किसी ने लिखा भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हम भारत में रहते हैं और भारत का जो सोच है, जो विचार है, वो बहुत नैरो नहीं है. शुरू से ऐसा नहीं है, आपसे शुरू से हम क्या कहते हैं? वासुदेव कुटुंबकम. व्हाट इज वासुदेव कुटुंबकम? The whole world is our family. One family. We are one family. The whole earth is our family. और human beings ही नहीं, भारत में तो पशु और पक्षियों को भी अपनी फैमिली में माना जाता है. I remember one very nice लीला in कृष्ण लीला. नंद महाराज और यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को नीचे रखा और तृणावत आया, the whirlpool असुरा. तृणावत आया और पूरे ब्रज में बहुत तेज आंधी चलने लगी. तो नंद महाराज ने बोला कि सब लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही है. सो दे स्टार्टेड रनिंग. तो किसी ने आके बोला, नंद बाबा गायों का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि उनकी रस्सियां खोलो. और उन्होंने जाके सबकी रस्सियां खोली. नाउ माइंड यू, उनके पास 2-4 गाय नहीं थी. कितनी गाय थी नंद महाराज के पास? 9 लाख काउज. सबकी रस्सियां खोलो, जाओ. तो जल्दी जल्दी वो लोग रस्सियां खोलने लगे ताकि वो अपने सुरक्षित स्थान को खुद चुन लें. पशुओं में बड़ी समझ होती है. और जब वो बाहर निकलने लगे घर से किसी खुले मैदान में जाने के लिए, तो एक छोटे बच्चे ने नंद बाबा को धोती पकड़ा और बोला, नंद बाबा ये प्लांट्स का क्या होगा? ये तो मर जाएंगे. तृणावत आएगा तो, मतलब व्हर्लपूल आएगा तो ये सारे प्लांट्स तो मर जाएंगे. नंद बाबा उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, I pray for these plants कि भगवान इनकी रक्षा करे, क्योंकि मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता. ये तो अचल है, ये तो फिक्स्ड है. अभी कुछ दिन पहले एक बंगाल का एक वीडियो आया था, उस पर शेयर हो रहा था टीवी पे, न्यूज़ में, कि बाढ़ आई तो सारे लोग भाग गए अपने घरों से, लेकिन अपनी बकरियों को खोलना भूल गए. और सारी बकरियां बहुत एंजाइटी में है क्योंकि वो देख रही हैं पानी आ रहा है और वो रस्सी से बंधी है. तो कुछ लोग वहाँ से तैर के गए, उन्होंने दिखाया, वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने खोलने के लिए गए. हमारा कल्चर तो ऐसा कल्चर है जहाँ पे लोगों को नहीं, पशुओं को भी अपना परिवार समझा जाता है. तो ऐसा परिवार, ऐसी मेंटालिटी कभी विश्व में अशांति नहीं फैला सकती. हम तो शांति का संदेश देते हैं.
लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, ये हमारा नारा है। तो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुज्म हो, सारे के सारे रिलीजन इस पृथ्वी से पैदा हुए हैं, सिखिज्म पैदा हुए हैं और फले फूले हैं। लेकिन ये छोटी सोच वाले लोग, जिन